हेलो। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولیے ذاکر بھائی۔ ہاں عمر صاحب خیریت؟ ہاں خیریت ہے، بتائیے آپ اللہ تعالیٰ کو کہاں مانتے ہیں؟ نہیں، دیوبند کے عقیدے کیا ہے اصل سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کوئی بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے، کوئی بولتے ہیں اللہ لامکاں ہے، کوئی بولتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ میں ابھی ان پوچھ میں رہا سے ہوں صحیح کہ عقیدہ کیا ہے؟ آپ کے مطابق اللہ تعالیٰ کہاں ہے، وہ میں پوچھ رہا ہوں۔ میرے مطابق نے قرآن و صحیح حدیث، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور اجماع اس پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ آپ کہاں پر ہے؟ آپ کی ایک منٹ عرش کے اوپر ہاں، کا مطلب کیا؟ عرش پر نہیں، عرش کے اوپر ہی ہیں؟ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، وہ کیا کیفیت میں ہے؟ عرش سے نیچے ہے، عرش کو لگا ہوا ہے، اس کی کوئی اچھا، تعویل، کوئی کیفیت اہل سنت و جماعت نے بیان نہیں فرمائی۔ اپنی ذات کے اعتبار سے ہے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہی یا صفات کے اعتبار سے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر چلیے ہے۔ قرآن کی آیت، حدیث اور سلف چلیے سے اس کو ثابت کیجیے۔ اجماع بولے ہیں نا، اجماع ہے تو اجماع میں سے بالکل ثابت پیش کیجیے، کروں گا۔ سلف سے۔ ہاں بالکل ہاں چلیے قرآن کی آیت۔ بالکل، جب میری باری آئے گی تب میں پیش کروں گا۔ پہلے آپ بتائیں اپنا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں، آپ نے اپنا ہاں۔ عقیدہ بیان کیا ہے نا، تو اس پہ دلیل ارے دیجیے۔ تو میں بیان کیا، آپ کیوں بیان نہیں کر رہے؟ آپ کا عقیدہ نہیں ہے کیا اہل سنت کا؟ وہ جب ہم عقیدہ بیان جب میں کریں نے گے ہم دلیل دیں گے۔ جب میں بیان کر دیا تو آپ بیان کرو نا۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارے بھائی عرش تو کے تمہارا اوپر کوئی دعویٰ نہیں ہے اللہ کہاں ذات پر کے ہے۔ اعتبار سے، تو آپ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ ارے رکو نا یار ذاکر بھائی، ڈر کیوں رہے ارے ہیں آپ جب میں بتاؤ، فون دیکھو کرتا ہوں بات تو ڈر لمبی کے مت کیوں؟ کرو، ڈر بات کیوں لمبی رہے؟ نہ کرو، تو ڈر کیوں بات رہے یار؟ لمبی نہ کرو۔ رکو، اپنے ارے میں عقیدے کیا مقلد حروف جاہل میں ہوں اتنا ڈرنے کے چلاتے لیے؟ ہو؟ رکو ڈر حروف تو میں آپ اتنا رہے ہیں، سنو یار، کوئی مقلد اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے بتانے کے حروف لیے میں تیاری اتنا نہیں ہے۔ چلاتا ہے، دیکھو دعویٰ کرتا ہے ابھی تم دیکھو کہ اتنی دیر اللہ وقت تعالیٰ برباد عرش کرو کے گے۔ اوپر ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے، اجماع سے، سلف سے سب ثابت ہے، چل لیکن میں دلیل مانگتا ہوں تو تم کو دلیل نہیں دے پاتے کیا؟ ہاں ہو گئی بات آپ کی؟ ہاں بولو دلیل، تو بات ہو ہاں گئی نہیں؟ تم نے عقیدہ جو چلو بیان ابھی کیا اللہ ابھی تعالیٰ خاموشی سے ذات کے سنو، اعتبار سے عرش کے اوپر ہے، ابھی وہ خاموشی دلیل سے بتاؤ۔ سنو، ابھی خاموشی سے سنو۔ ہاں میں نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا اور ایک مرتبہ کہنے پر ہی بتا دیا الحمدللہ۔ پتہ نہیں مقلد کو کیا ہوتا، ایک بات 100 مرتبہ پوچھنا پڑتا، اگر کچھ بولے تو برا دکھتا۔ ارے ذاکر میں نے بھائی، اپنا عقیدہ بیان کیا، ہمارا عقیدہ آپ ہم اگر بات میں بیان کر کے پھر بیچ میں دلیل دیں گے۔ ابھی آپ بیچ نے میں نہ اپنا آئے نا، عقیدہ بیان کیا، اس پر بیچ دلیل میں دو نہ نا آؤ بھائی۔ بھائی، میری بات سنے دو ارے مکمل، یار اس کے بعد تمہارے آپ پاس بولو۔ دلیل نہیں ہے، خالی عقیدہ بیان مکمل کرتے۔ یعنی تمہارے پاس تو عقیدہ ہی نہیں ہے، پھر اس کا مطلب یہ نکلا، ہم تو کہہ رہے ہیں نا اس کا کہ ہم مطلب یہی عقیدہ نکلا بیان کر کے دلیل بقول بیان کر تمہاری دیں گے، عقل کے۔ لیکن تم تو عقیدہ بیان کرتے ہو، دلیل نہیں دے پاتے، کیا وجہ ہے بتاؤ ذرا۔ جب میری بات مکمل ہوگی تب آپ اپنی بات رکھو، جب آپ کی بات مکمل ہوگی تو میں بیچ میں بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ اگر ایسے ہی بڑبڑ کرو گے نا تو پھر بیکار ہے بات کرنا۔ یہ بڑبڑ ہے میں کیا؟ نے تم سے دلیل مانگ رہا ہوں، یہ پھر بڑبڑ بیچ ہو میں آ گئی؟ گئے، واہ بھائی پھر واہ۔ بیچ میں آ گئے، اور میں جب سے آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں، ابھی تک 10 مرتبہ تو پوچھ لیا آپ سے کہ بھائی جب تک میں بات آگے نہیں بڑھاؤں گا، جب تک آپ اپنا مکمل عقیدہ نہیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، ورنہ ایسے ہی پھر خالی اوٹ پٹنگ بیچ میں باتیں آپ بولتے جاؤ پھر میں بولتے جاؤ، تو اس کا کوئی مطلب اور معنی نکلے گا ہی نہیں، یاد رکھ لو۔ آپ جب تک بات ہم آگے بڑھائیں گے، جب تک آپ اپنا عقیدہ بیان کر دیں گے، تب ہم آپ کو بات بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلو اب آپ اپنا عقیدہ بتاؤ یا پھر میں خود فون کٹ کر دوں گا۔ ذاکر بھائی تم اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ تم نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے ذات کے اعتبار سے، اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث، سلف اور اجماع سے ثابت ہے۔ ہم اپنا عقیدہ بتائیں گے، اس پر دلیل بھی دیں گے، ہم دلیل دینے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ ڈریں گے، لیکن تم اپنا عقیدہ بتا کے اس کو دلیل نہیں دے رہے ہو۔ تمہارا جو عقیدہ تم نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے ذات کے اعتبار سے، تمہارا جو دعویٰ ہے قرآن و حدیث اور سلف اور اجماع سے ثابت ہے، تو میں قرآن سے، حدیث سے، سلف سے، اجماع سے دلیل مانگ رہا ہوں۔ ذاکر بھائی دلیل دیجئے، جب ہماری باری آئے گی میں اپنا عقیدہ بیان کر کے اپنی دلیل ترنت دوں گا، میں ذرا بھی ہچکچاؤں گا نہیں، ٹھیک ہے؟ ذاکر بھائی بولیے، دلیل دیجئے۔ یہ میرا اس سے 11واں مرتبہ میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنا مکمل موقف اور عقیدہ بیان نہیں کریں گے تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی، یا پھر آپ کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یا من گھڑت عقیدہ ہوگا، یا جہمیہ کا عقیدہ ہوگا، کیونکہ اکثر میں نے گفتگو کی مقلدین سے، ان کے عقیدے جا کے جہمیہ سے میل کھا رہے۔
आप क्योंकि डर रहे हो इसीलिए आप अपना अकीदा बयान करने के बजाय दलील पूछ रहे। भाई हमने अकीदा बताया रूल के हिसाब से, एक मर्तबा कहने पर मैंने आपको 11 मर्तबा पूछ लिया, फिर अगेन पूछ रहा हूं 12 मर्तबा। आप अपना मुकम्मल अकीदा बताओ, उसके बाद बात आगे होगी, ठीक है, उसूलन गुफ्तगू होगी। पहले आप बताओ, उसके बाद दलील। ये आखिरी मर्तबा मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ, आप अपना मुकम्मल मौक़िफ़ और अकीदा रखो। अगर बात आगे बढ़ाना है, नहीं तो फिर मैं समझूंगा कि हमसे ज्यादा तो आप डर रहे हो। इतने मर्तबा मुतालबा करने पर भी आपने अपना अकीदा नहीं बताया, तो दलील कहाँ से लंघे? मनगढ़ंत अकीदे, बातिल अकीदे की कोई दलील कुरान और सुन्नत फहम सहाबा फहम सलफ से साबित नहीं हो सकती। चलिए अब आप अपना अकीदा बयान करिए। जाकिर भाई, यहाँ आपने अपना अकीदा बयान किया, हमारे अकीदे जब बयान करेंगे ये दूसरी ऑडियो में करेंगे, वो तुरंत फोन करेंगे। अभी आप हम अपना अकीदा बयान करेंगे तो यहाँ भाग जाएंगे। आप अपनी दलील से बचने के लिए ये बातें कर रहे हैं। आपने अपना अकीदा बयान किया, हम आपका अकीदा पूछ रहे थे कि भाई बताइए अल्लाह ताला कहाँ पर है आपके अकीदे के मुताबिक। आपने कहा भाई अर्श के ऊपर है, ये कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, सलफ से साबित है, इजमा से साबित है। ये 4 बातें आपने की, तो मुझे चारों से आप दलील दीजिए। आप डरिए मत, अपना अकीदा बयान कीजिए। ग्रुपों में तो इतना चिल्लाते हो, ग्रुप में बुलाता हूँ तो ग्रुप में भागते हो, वहाँ जवाब नहीं देते मेरी बातों का। फोन पे बात होती है तो फोन पे मेरी बात का जवाब नहीं देते, अपना अकीदा बयान करके उस पर दलील नहीं कायम कर पाते। हम दूसरी आइडियो में हम अपना अकीदा बयान करेंगे और उस पर इंशाल्लाह सारी दलीलें भी देंगे। और पहले भी मैं ये अकीदा बयान करके दलीलें भी दे चुका हूँ, लेकिन आप बोलोगे तो दूसरी ऑडियो में हम दे देंगे। अभी इस पे बात नहीं हो रही, बात खलत मलत हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। खलत मलत गुफ्तगू मत कीजिए। आपने जो अपने अकीदे पे दावा पेश किया है उस पर आप दलील दीजिए, कुरान से, हदीस से, इजमा से और सलफ से, जैसे कि आपका दावा है। जाकिर भाई दलील दीजिए। वाह वाह, देखा आप लोगों ने, सही कहा आइम्मा मुहद्दिस ने। अगर हम कुछ बोले तो बोले कि बुरा दिखता। सलफ ने सही कहा, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल होने पर के मुक़ल्लिद जाहिल होता है। मैं जब इनकी इबारतें पढ़ता था, इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम कुतुबी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की हम जब इबारतें इनकी किताबों में पढ़ते थे, ये मुक़ल्लिद को जाहिल बोले। हम बोले कि भाई मुक़ल्लिद को क्यों जाहिल बोले? जब इनसे गुफ्तगू करते हैं तब पता चलता है। अरे मैं पहले ही आपको बता दिया कि आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, जब तक आप अपना मुकम्मल अकीदा बयान नहीं करेंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। बजाय तुम अपना अकीदा बयान करने के तुम इधर उधर घुमा रहे। वैसे तो मैं कई लोगों से गुफ्तगू करा और कई ऑडियो पड़ी हुई है, उसके अंदर मैंने दलील दे दी है, वहां से आप सुन ले सकते हैं दूसरी ऑडियो में। जब तक आप अपना अकीदा बयान नहीं करेंगे तब तक अब बात आगे नहीं बढ़ेगी। फिर से मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि पता नहीं अगर कुछ बोले तो बुरा दिखता। इससे 14-15 मरतबा मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ कि भाई अपना अकीदा बयान करो, अल्लाह ताला कहाँ पर है। तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी, ताकि मुझे पता चले ना कि सामने वाला जिससे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उसका अकीदा क्या है। जब मालूम ही नहीं है और दलील पेश कर दूं, वाह, ये आखिरी मर्तबा। उसके बाद में जो है आपको फोन काटना है काट दीजिए, क्योंकि इतनी देर हो गई। आप मेरी ऑडियो सुनते आइए, एक ही मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, जब 2 मिनट भी खत्म नहीं हुए थे हमारी बात शुरू होके, मैंने अपना अकीदा बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपसे बार बार मुतालबा कर रहा हूँ, नहीं बता रहे का मतलब यही है कि तुम्हारा अकीदा सही नहीं है, या फिर तुम नहीं बताना चाह रहे। वो नहीं बताना है तो फिर फोन करे क्यों? ये बोलो मेरे को खाली टाइम पास करने के लिए। अब कुछ बोले तो बुरा दिखता, फिर इतने मरतबा पूछना पड़ता क्या आपको? बोलो, अगर ऐसी हालत रही ना तो हम पूरी दिन या पूरी रात गुफ्तगू करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, समझे आप? अपना अकीदा बयान करो और बात मुख्तसर करो। जाकिर भाई, जो आपने कहा है कि आइम्मा ने कहा है कि मुक़ल्लिद जाहिल होता है, तो पहली बात तो आप खुद तकलीद करने लगे आइम्मा की। आइम्मा ने कह दिया, आपने उसकी तकलीद मान ली तो आप खुद मुक़ल्लिद हो गए, तो इसका मतलब आप अपने आप को जाहिल कर रहे हैं। दूसरा, सारे आइम्मा ने, मुज्तहिदीन ने और सलफ से ये साबित है कि मुक़ल्लिद के लिए तकलीद करना वाजिब है, तो आप इसको नहीं मानते, कोई बात नहीं। दूसरी बात है कि मैं अपना अकीदा बयान कर देता हूँ, चलो अल्लाह ताला हर जगह है, ठीक है, लेकिन आप इस पर दलील मत पूछना। क्यों? क्योंकि अभी आपके ऊपर दलील जो आपने दावा किया है उस पर बात होगी। मेरा मानना है, मेरा अकीदा है कि अल्लाह ताला हर जगह है, ठीक है, उसकी जात के लायक है, उसकी अजमत के लायक जो है, ठीक है। क्या क्या और क्या बोले, क्या बोले? आप रुको, मेरी पूरी बात नहीं हुई है, पूरी बात सुनो पहले।
आपकी बात करते हुए आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे बीच में मत बोलो, अभी जब मैं बोलने के कहूँ तभी बोलना। देखो जाकिर भाई, अरे यार तुम ही बोलो, ये गलत वजाहत बात करो, है। तुम्हारी बात समझ में अभी नहीं मैं आई, तुम्हारी क्या बात बोल रहा पे हूँ? खामोश मुकल्लिद दे था, दो। अभी चुप रहो, अभी चुप रहो। मैं देखे जानता हूँ कि ऐसे तुम बात जाहिल नहीं होते हैं। सुनो, रुको, तुम भागना चाहते हो। तुम अभी इसके बाद तुम फोन कट कर देते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो अकीदा है मैंने बयान किया, और आप अपने अकीदे अरे के पहले वजाहत करो, यार, समझ पूरी में नहीं बात। आया? पागल इंसान है क्या? ये देखो भाई, वसूल खराब मत करो, वसूल तुमने बनाया, अरे खुद तुमने पागल, वसूल तोड़ सुनो रहे। पहले, अंधे जाहिल मुकल्लिद, पहले अगर कुछ बोला तो दिखता अभी आ बुरा गया दिखता। बदतमीजी पे, अभी आ गया बदतमीजी पे। अरे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ वो तो अभी सुनो, तो चुप तुमने ना, जो पहले अरे फिर वही मेरी बात, बात पूरी सुन ले, अरे फिर तुम्हारी बात होने फिर दो, मैं बोलना। क्या बोल रहा हूँ पहले वो तो सुनो। तुम जब अपना अकीदा बयान कर रहे थे, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आई। मैं अरे तुम्हारे अंधे जाहिल बीच में नहीं मुकल्लिद, बोला, मैं क्या पूरी बोलना बात चाह तो रहा हूँ वो सुन तो ले। सुनो। मुझे मालूम है तू बात नहीं करेगा, तू डरा हुआ है, हमेशा जब मैं फोन आगेगा भी करता हूँ देखो, इतना डरा हुआ अभी कुछ है, बोला तो बोले बहुत गलत डरा दिखता है हुआ है लोगों यार, को। कभी उसूल से बात नहीं करता, ना ग्रुप में बात अरे तुम करता अपने है। अकीदे की वजाहत कर हाँ तो मुकल्लिद। मैं रुक, पूरी बात तो कर, मैं क्या सुनना बोल रहा हूँ, पहले, जब चुपचाप तुम रहो। अपना अकीदा बता रहे थे तो तुम्हारी आवाज मुकम्मल अभी नहीं आई। मैं अभी सिर्फ ये इतना देखो, बोल अभी रहा देखो था कारीन ये बोलता कि है तुम कि अपनी आवाज मुकम्मल। ये फोन मैं क्या कट करने मुकल्लिद के जाहिल लिए, हूँ भागने के लिए एक हीला किया कि मैं अपना अकीदा बयान करूं, जबकि ये इसके अकीदे पे बात हो रही है। तो लेकिन फिर देखो, भी मैंने अपना अकीदा बयान किया है, लेकिन ओहो, दलील मेरे अभी अकीदे तुम्हारे पे अकीदे पे होगी। अब मेरे कहीं को अकीदे पे तुम्हारा दलील अकीदा नहीं बाद है। में होगी, ठीक है। हाँ तो डरो मत चलो, जाकिर साहब, आपका जो अकीदा है कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर जात के एतबार से है, तो तुम अपना कुरान से, हदीस से, इजमा से, सलफ से, चार चीजें का तुमने नाम लिया कि साबित है। तो अब उसको हाँ तुम साबित करो, और हमारे अकीदे पे बात में हम साबित करेंगे। तुम डरो मत, बिल्कुल डरो मत। और जो जाहिल मैं वाली बात करते हो, मुकल्लिद जाहिल होता है, तो जाहिल तो तुम एक नंबर के पहले ही से हो, क्योंकि तुम खुद मुकल्लिद हो, और भी अंधे मुकल्लिद, ठीक है। हाँ बस करो, अब हो गई बात तुम्हारी। मैं हाँ बस चलो, इतनी वजाहत चाह रहा अकीदे था पे दलील तुमसे। पेश करो। अगर इनको कुछ बोले तो बुरा दिखता। मैं बस इनको इतना पूछ रहा था मुकल्लिद को कि जब ये अकीदा बता रहे थे तो इनकी आवाज मुझे समझ में नहीं आई, मुझे समझ में नहीं, इसीलिए मैं इनको यही बोल रहा था तो तुम अपने अकीदे की वजाहत करो। मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बोलो, बस इतनी बात। इनको समझ में नहीं आएगा ना मुकल्लिद, इसीलिए तो जाहिल बोले। मैं फिर आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद दलील की बात हो, अपनी अकीदे की वजाहत करे। अल्लाह ताला हर जगह है या अल्लाह ताला लामका है? दो अकीदे में से कौन सा? क्योंकि फिर भागना नहीं इधर उधर। चलिए 30 सेकंड देता हूँ, आप बोलो, उसके बाद फिर मैं दलील पेश करता हूँ। तुमको लगता है सुनाई कम देता है। मैंने कहा अल्लाह ताला हर जगह है, जो उसकी जात के लायक है, और जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी अजमत के लायक, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अल्लाह ताला हर जगह है, उसकी शान के जो लायक है। तो तुम्हारे अगर नहीं समझ में आता है अंधे मुकल्लिद साहब, तो फिर से सुन लो, ठीक है। तो मैं अल्लाह वही तो ताला हर आपसे पूछ जगह रहा है, हूँ ना, जो उसकी जात जात के और एतबार से है उसकी या अजमत इल्म के के लायक। एतबार से है? हाँ, अल्लाह ताला जात के एतबार से है या इल्म के एतबार से है? बात असल यहाँ हो रही, घुमा रहे क्यों बात आप? अच्छा, जात के एतबार से, चलो जात के एतबार से अल्लाह हर जगह है। हाँ, हर जगह है। चलिए हाँ, आप अपनी बस इतनी दलील बात दीजिए। थी। चलिए हाँ, अभी मेरी बात जब तक 2 मिनट हो जाए या 1 मिनट हो जाए या 1.5 मिनट हो जाए, मुकम्मल होने दे, बीच में ना बोले। हमारे पास दलील है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह आराफ, सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 54। ये आयत है, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। इस आयत की तफसीर तिब्यानुल कुरान उठा के पढ़ेंगे तो वहां पर सहाबी रसूल को, कौन बने? एक सहाबी रसूल इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अर्श के ऊपर है। फिर यही अकीदा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का है, कहते हैं कि अल इस्तिवा मालूमुन वल कैफी मजहूलुन वल ईमानु वाजिबुन व सवालुन अन्हा बिदअतुन। पहले साबित हो गया कि अल्लाह ताला अर्श पर है। अब जात के एतबार से इन्होंने कहा साबित करने के लिए ना, ये तो कुरान की आयत, उसके बाद में सलफ से दलील लगा दिया मैं आपको कि हाँ ये सलफ ने बताया भाई इस बारे में, ये सलफ ने आपको बताया इस बारे में बोल के। अब इनका जो अकीदा है, पहले इस पे तो मैं बोल लूँ, उसके बाद में जात के एतबार से दलील दे देता हूँ। इन्होंने जो अकीदा बनाया कि अल्लाह ताला हर जगह है, मेरा अकीदे पे इस बात पर अभी मत करो। अरे अभी मेरी तुम्हारे बात होने अकीदे दो, पे फिर बीच दलील में दो। ना बोलो। वो गलत बात है, मैं दे दिया, खलत मेरी बात मलत होने मत दो। करो, गलत बात है, खलत मेरी मलत बात मत करो। फिर बीच जब में आ मेरे, गए, अरे बीच गधे में आ गए, आदमी, जब मेरे अकीदे पे बात देखो आ आएगी गया तब बीच में, उससे बात जिन करना। जाग गया, नहीं जिन नहीं जाग नहीं, गया, गलत बात है। जिन जाग गया ना। अभी तुम्हारे अकीदे, जिन, तुम्हारी दलील पे चलो बात होगी। मेरी तुम जो चलो दलील दे रहे मेरे हो उसका अकीदे की जवाब बात, सुनो। चलिए कोई बात मेरे नहीं, से जवाब सुनो।
जो तुमने दलील दिया ठीक है, जब आपकी बारी आएगी जब आप अरे यार, जवाब देना, मैंने पहले ही ये बता दिया आपको। ये तिब्यानुल कुरान किसकी किताब है? मैं आपको बाद में बता दिया, जब आपकी बारी आएगी तब आप बता देना, ठीक है? बीच में ना बोलो, इसलिए बोला मैं, बीच में फलते में बहस ना करें। नहीं तो गलत मबहस मत करो ना मैं ये। अरे जब आपकी बारी आएगी तो आप गलत है बोलते क्या बोलते जब बोल लो ना। अभी तुम्हारे अकीदे की बात है। तुम ये अकीदा तुम्हारा जो है ना, जो अहले सुन्नत का है समझते हो, ये अकीदा जहमिया का अकीदा है, ये अकीदा मोतजिला का है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जहमिया का अकीदा है कि अल्लाह हर जगह है। इमाम इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं तलबीस इब्लीस में, अरे फिर बीच में आ रहे की तफसीर की बात बीच में, देखा आप लोगों ने बीच में आएंगे मुकल्लिद, इसीलिए तो जाहिल है। मैंने कहा ना मुकल्लिद जाहिल होता है। से भी ये साबित नहीं है ना इमाम। अरे मुकल्लिद जब तुम्हारी बारी आएगी जब तुम बोलना, ये जब तुम्हारी बारी आएगी जब बोलो, जब तुम्हारी बारी आएगी तब बोलो ना। कुछ भी जब तुम्हारी बारी आएगी तुम बोलो यार, मेरे टन में क्यों बोल रहे हो? पूछ रहा हूँ, देखो कितना डरा हुआ है, कुरान किसकी किताब? खुद डरा हुआ है, खुद डरा हुआ है, खुद डरा हुआ है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है, खुद डरा हुआ है, बीच में मेरे टन में बोल रहा है। ये गलत मतलब ऐसे जाहिल मुकल्लिद बोलने के बाद, पे बात ही नहीं, इतनी वाज़ेह बात बोलने के बाद कि भाई मेरी बात जब मुकम्मल हो जाएगी 2 मिनट लगेंगे या 1.5 मिनट लगेगा, तुम नहीं बोलना फिर बीच में। कुछ भी अरे तुम कुछ भी, अरे तुम गाली दो यार, तुम्हारे टन में तुम गाली दो, क्योंकि मुकल्लिद के पास दलील नहीं होती है ना, वो जलालत और गुमराही करता है। अंधा मुकल्लिद है, मुझे मालूम है, अभी पता चलेगा। चल जब दलील की बात आएगी जब बोलेंगे। देखो जैसे ही इनके अकीदे पे मैंने बात की तो इनके दुम पे, अरे तुम्हारा अकीदा बातिल है, लोगों को समझने तो आए, दीन का नाम लेके, इस्लाम का नाम लेके, कुरान हदीस का नाम लेके कैसे आवाम को गुमराह कर रहे हो। इमाम इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, फिर बीच में देखा फिर आप लोगों ने फिर बीच में नहीं बोलने दे रहा है मुकल्लिद, तो पहले भी कहा बीच में ना बोलो। फिर मेरे 2 मिनट शुरू होंगे यहाँ से मेरे फिर 2 मिनट शुरू होंगे। गलती आपकी है, अपने अकीदे पे गलती आपकी है, गलती आपकी है, गलती आपकी है। यहाँ पर बार बार मैं बता रहा हूँ कि गलती आपकी है। देखा आप लोगों ने ये शर्त तो तोड़ देते हैं, ये तो ऐसे तो जाहिल होते हैं, अगर कुछ बोले तो बुरा दिखता। अरे यार मैं कुछ भी बोलो मेरे टन में तुमको क्या लेना देना, तुमको डर क्यों लग रहा अपने अकीदे से? अरे तुम्हारा अकीदा जब सही है, मैं जब बारी आएगी जब तुम अपने अकीदे की वजाहत कर लो। तुमने इमाम इब्न जौजी सुनो, अरे फिर बीच में आ गए, फिर बीच में आ गए ना। अगर आप बीच में आए तो फोन काट दूंगा मैं, ठीक है? तू बहाने तलाश कर रहा है भागने क्योंकि तुम्हारा जो अकीदा है ना इसके ऊपर बात करो, इसीलिए कोई उसूल ही नहीं है तुम्हारे मुकल्लिद के पास। जब तुम्हारी बुनियाद में ही कोई उसूल नहीं है तो तुम्हारी गुफ्तगू में कहाँ? फिर बीच में आ गए, देखो फिर बीच में बोल रहे। अरे बीच में ना बोलो, इतना डर रहे क्यों? कोई जाहिल अंधा मुकल्लिद गुफ्तगू करने नहीं देगा, ऐसी गुफ्तगू करेगा। ये गुफ्तगू है, ये इल्मी गुफ्तगू है। अरे तुम्हारे टन में तुम बोलो यार, तुमको 2 मिनट देता हूँ, मैं खामोश रहूंगा। अब तो तुम खामोश रहो, मेरे 2 मिनट शुरू होते, अब 25 से शुरू कर रहा हूँ मैं। अभी बीच में बोले तो तुम्हारी शिकस्त हो गई, समझ जाओ, ठीक है? जब आप बोलेंगे मैं भी खामोश रहूंगा। देखिए पहले तो मैंने बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फिर बीच में अपनी फिर बीच में आ गए। बाकी कोई इधर अरे बीच में ना बोलो यार, कैसे अंधे जाहिल मुकल्लिद, इतना बोलने के बाद भी नहीं सुधरते लोग। कुछ बोले तो बोले, बोले तो मत, परेशान ना, डर मत। कुरान की वाज़ेह आयत है, अर्रहमान वाला अर्श इस्तवा, रहमान अर्श के ऊपर मुस्तवी हुआ अपनी शान के लायक। यही अकीदा है, यही अकीदा। फिर बीच में आ गए, फिर बीच में ना बोलो यार, क्यों इतना, कितने बार बोलना मुकल्लिद को बोलो। अब कुछ बोले तो बुरा दिखता। चल दलील फिर 1 मिनट ऐसे ही बर्बाद करे, देखो 1 मिनट ऐसे ही बर्बाद करे, फिर से 2 मिनट लूंगा मैं। तो 5 मिनट ले ले, मगर दलील पे बात। अरे तो अच्छा चल, अल्लाह की कसम खा ले, 5 मिनट तक कुछ नहीं बोलेगा। अल्लाह की कसम, लेकिन दलील, सिर्फ दलील पे बात करेगा। अल्लाह की कसम उठा ले, मैं कुछ भी बोलूंगा 5 मिनट तक कुछ नहीं बोलना करेगा तो मैं 5 मिनट बोलूंगा और 10 मिनट भी बोलूंगा, अल्लाह ने चाहा तो। तू बीच में नहीं बोलना अपनी दलील। अरे तू कुछ भी बोलूंगा मैं, तुझे क्या लेना देना? तू अपनी बात पे तो ठहरना, मैं खामोश रहूंगा। क्यों इतना डर लग रहा तेरे अकीदे से? क्यों डर लग रहा है मेरे बोलने से? देखो 2 मिनट ऐसे फिर बर्बाद कराना, 2 मिनट फिर बर्बाद हो गए। देखिए गामड़ बोलना अपनी दलील। अगर बीच में बोला, अगर अब बीच में बोला तो नंबर 1 जाहिल मुकल्लिद ठहराएगा। देख पहले ही बता दे रहा हूँ। अरे भाई तुम बोलो तुम्हारे टाइम पे, अभी मेरे टाइम पे मैं बोलूंगा, फिर बीच में आ रहे हैं जाहिल। तो देखिए 2 मिनट ऐसे ही बर्बाद करा। देखिए आप लोग ऐसे जाहिल क्यों, ऐसे क्यों है मालूम? मैं इसकी दलील देता हूँ। देखो ये बड़बड़ करने की वजह देखो। नहीं खामोश भाई, पहले खामोश, पहले खामोश।
पहले खामोश, दलील अल्लाह का पेश कर वास्ता यार, अगर बीच में गधे बोला कहीं के बड़बड़ कर रहा है। दलील अल्लाह का वास्ता बीच में बोला 2 अरे मिनट के यार बाद दलील पेश बोलना, कर ठीक है? बोल रहा हूँ, चलो गावड़। आप चलो सुनो, कुरान की वाज़ेह आयत है। क्या आयत है? अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। इसके ऊपर सहाबी रसूल गवाही दे रहे। उसके बाद में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का भी यही अकीदा है। उसके बाद अब देखिए इस्तिवा के ताल्लुक से बेजाती ही कहने वाले सलफ में कौन कौन है, देख लो आप, कौन है सलफ में। अब देखिए हाफिज अबू नजीर क्या फरमाते हैं कि यानी अल्लाह ताला अपने बुजुर्ग अर्श पर मुस्तवी है जात के एतबार से, मगर उसका इल्म हर जगह मौजूद है। फिर उसके बाद में क्या कहा? इसहाक बिन राहवे, कौन? हमारे उलमाए कराम के बारे में बता रहे हो। हमारे जो आइम्मा कराम है जैसे सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हम्माद बिन सलमा रहमतुल्लाह अलैह, हम्माद बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह, सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इसहाक बिन राहवे, ये सारे के सारे इस बात पर मुत्तफिक है कि अल्लाह ताला बिज़ाती अर्श पर है, लेकिन उसका इल्म हर मकान में मौजूद है। ये किताब है अकीदे सलफ पर एतराज़ात का जायजा बोल के नामी किताब, इसके अंदर भी है। ये सलफ के इतने नामा मैं आपको बता दिया। फिर और एक जगह बता रहे, देखिए क्या बता रहे। शेखुल इस्लाम अबू इस्माइल हरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बहुत सारी अहादीस में वारिद है, कहते हैं कि अल्लाह ताला 7वें आसमान से ऊपर बिजाती अपने अर्श पर है, वो देखता है तुमको कैसे तुम अमल करते हो। इसका इल्म, उसकी कुदरत, उसका सुनना, उसकी रहमत हर मकान में है बोल के बता रहे। और उसके बाद में कौन और एक देखो किसका अकीदा है, इमाम याहिया बिन उमर सजस्तानी रहमतुल्लाह अलैह, ये कहते हैं कि हम ये नहीं कहते जहमिया की तरह कि अल्लाह ताला हर मकान में है। जहमिया की तरह क्या कह रहे हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, ये नहीं कहते। हम ये नहीं जानते कि वो कहाँ है, लामकान का अकीदा भी रद्द हो रहा, बल्कि हम कहते हैं कि वो बिजाती अर्श पर है और उसका इल्म हर चीज को इहाता और मुहीत किए हुए है। ये देखिए फिर उसके बाद में इमाम इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत वल जमात का इजमा नकल करके कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात में किसी एक शख्स ने भी नहीं कहा कि अल्लाह ताला हर जगह है। ये कहने वाले जहमिया और मुअतजिला जो अल्लाह को हर जगह मानते थे, अल्लाह ताला तो अर्श के ऊपर मुस्तवी है, समझे। फिर इसके बाद इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम जहमिया की तरह ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला हर जगह है। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह भी ये बात कहते हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जहमिया कुरान की आयत से मा यमसिकुहुन्ना मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम की दलील बनाकर कहते हैं कि जहमिया का ये अकीदा था कि वो अल्लाह को हर जगह मानते थे, यानी कि जहमिया के अकीदे को अहले सुन्नत का समझ बैठे। और इतनी वाज़ेह और सही दलील आने के बाद आप हमारे अकीदे में वाज़ेह आयत है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, और जितनी मुफस्सिरीन तफसीर कुर्तुबी, तफसीर बगवी, तफसीर सादी, तफसीर अल-मिज़बा अल-मुनीर, तफसीर इब्न कसीर, तफसीर जो है सो आपको दुर्र मंसूर, तफसीर जो है आप मदनी, तफसीर मज़हरी, कितने आपको तफसीर 20 तफसीरों के नाम ले सकता हूँ। सारे के सारे मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श के ऊपर है। किसी एक सहाबी का यकीदा नहीं था कि अल्लाह ताला हर जगह है। चलिए मेरी बात मुकम्मल हुई वादे के मुताबिक। अभी ये बोले मैं कुछ नहीं कहूंगा, बराबर 3 मिनट बोला मैं, है कि चले गए? हाँ चलिए। अच्छा आपका टाइम शुरू हो रहा बराबर, आप 40 से शुरू कर रहे, बोलिए। यार गधे यार, तुमने कहा कि इतने चीजें गिनाई है। एक तो इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु पे झूठ बोला, दूसरा इमाम मालिक पर झूठ बोला, और देखो कारीन इसका एक चीज देखो, इतनी बातें बोला है, सारी बातें झूठ है। एक इबारत नहीं पढ़ा, ना किताब का नाम दिया, ना इबारत पढ़ा, ना उसका तर्जुमा किया। ये खाली बकबक करता रहा, फला का नाम ये कीदा, फला का ये कीदा, फला के दे, बाकी कोई इबारत ये नहीं पढ़ा, ना किसी किताब का हवाला दिया, ना कोई सफ़ा बताया, ना किसकी तफसीरें नाम लिया है। जितना एक नंबर झूठा है। तफसीरें एक भी तफसीर की इबारत नहीं पढ़ा और बोलता है कि सलब का ये अकीदा, फलाना का ये अकीदा, फलाना का अकीदा। ठीक है, मैं इबारतें पढ़ता हूँ अल्लामा जहबी की और तफसीरों के सारे चीज़ें मैं पढ़ता हूँ। अब इसके साबित होगा कि इसका अकीदा झूठा है, ये गलत है। ठीक है, अल्लामा जहबी अकाबिल सिकात में खुद फरमाते हैं कि अन रबिया
एक बड़े मशहूर ताबईन हैं और दूसरे इमाम मालिक से भी उन्होंने नकल किया है सफ़र नंबर 121 पे कि रवी अन मालिक अन सुइला अनिल आयती इस्तवा फ़क़ाल अल कैफ़ु गैर माक़ूल वल इस्तिवा गैर मजहूल वल ईमान बिही वाजिब वस्सवालु अन्हु बिदअह। और दूसरी जगह के इमाम मालिक से एक बंदे ने कहा कि इस्तवा की कैफियत पूछने लगा थे। इमाम मालिक थोड़ा देर मुंडी नीचे किए और उनको गुस्सा आया और उनको बोले कि भाई इस्तवा गैर मजहूल है, उस पर ईमान वाजिब है, सवाल बिदअत है। यहाँ तक कि गुस्से से उसको वहां से निकाल दिया। इसी तरह शोबी उनसे पूछा गया तो फ़क़ाल हाजा मिन मुतशाबिहिल कुरान नुमिना बिही वला नतअर्रजू लिमानाहु। इमाम शोबी से पूछा गया कि इस्तवा के बारे में क्या है, तो कहा ये कुरान के मुतशाबिह आयतों में से है, हम सिर्फ उस पर ईमान लाते हैं और उसके माने पर हम नहीं करते। इमाम शाफ़ई से पूछा गया अन्नहु क़ाल लिमा सुइला अनिल इस्तिवा आमन तो बिला तशबीही व सदक तो बिला तमसीलिन। तो इमाम शाफ़ई कहते हैं इस्तिवा के बारे में हम उसकी न कोई कैफियत बताते हैं न तशबीह देते हैं, ठीक है, उसको सिर्फ ईमान लाते हैं कि इस्तिवा का माने। और इमाम अहमद भी पूछा गया इस्तिवा के क्या माने, तो इमाम अहमद ने कहा कमा जकर अला कमा यख्तुरुल लिल बशरी, जैसा अल्लाह ताला ने बयान किया है वैसे ही इस्तिवा है, ऐसा नहीं जैसा किसी इंसान के बशर के दिल में कोई गुमान या ख्याल आ जाए। तो इसी तरह और दूसरे आपका टाइम खत्म हो गया। रुको नहीं खत्म हुआ। 3 मिनट मैं बोला 3 मिनट हो गया। तुमको मैंने बहुत टाइम दिया है। 3 मिनट से ज्यादा नहीं बोला। नहीं, तुमको ज्यादा मैंने टाइम दिया है। रुको चलो 1 मिनट और दे देता हूं। तफसीर इब्ने कसीर है मेरे पास, इसमें उन्होंने कहा है कि मजहब सलफ साले मालिक वल औजाई वस्सौरी वल्लैस बिन साद व शाफी व अहमद इसाक बिन राही व गैरहुम मिन अइम्मतिल मुस्लिमीन कदीमन व हदीसन हुआ इमरारहा कमा जात मिन गैरी तकईफिन वला तशबीन वला तातीलिन वज़ाहिरुल मुतबादिर इला अजहानिल मुशब्बिहीना मुनफी अनिल्लाहि ला यशबहु शैउन मिन खल्किही। वो कह रहे हैं कि सलफ सालेह मालिक वल औजाई व सौरी व लैथ बिन साद व साफी व अहमद व इसाक बिन राहिया वो गए रहूँ अइम्मत मुस्लिमीन कदीमन व हदीसन, वो उसको मफूज करते हैं, मुफविज करते हैं जैसा कि वो आया है गैर तकीफ, कोई कैफियत बयान करके, न कोई तस्बीह बयान करके, न कोई उसका माने करेंगे कि अल्लाह ताला ऊपर है, न कोई अजहानुल मुशब्बिही, न मुशब्बे के दिमाग में जो आता है वो भी मुनफी अनिल्लाही, अल्लाह ताला से इनकार करेंगे। ला यशबहु शैउन मिन खल्किही, वो किसी मखलूक के मुशाबे नहीं है। और भी मेरे पास एक और हवाले हैं, ठीक है, इमाम अहमद बिन हम्बल और सुफियान सोरी। टाइम हो गया 5 मिनट। चल भाई ना बोलोगे तू भी आए तो इसी पढ़ चल बोल। हाँ हो गई आपकी बात। मेरी बात नहीं है। सामाइन आप लोगों ने, मैंने 5 मिनट इनको टाइम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 5 मिनट 5 मिनट में टाइम दिया। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की कसम खा लो झूठी, अल्लाह की लानत झूठों पर बोले। 2 मिनट से ज्यादा बोले तो मुर्तद की मौत मरोगे, मुर्तद की मौत मरोगे अगर 2 मिनट से ज्यादा बोलोगे। अंदर यही खन्नासियत ही भरी है और बोलो ना, फिर आपका सामना करो। अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो हल्फ उठाओ अल्लाह की। कोई आयत नहीं पढ़ रहा है, इबारत नहीं पढ़ रहा है। और मुझे अभी देखा आप लोगों ने, अभी खामोश हो जाओ, मेरा अभी टाइम 36 से शुरू हो रहा है। देखा सामाइन आपने, इन्होंने अपने अकीदे की तरफ आया ही नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अभी तुम्हारे अकीदे की बात आ रही है, फिर बीच में आप ना या तो फोन काट दो। बीच में आपको मैंने अल्लाह का वास्ता दिया हुआ है, क्यों बीच में ना लो, बात कर रहा, डरा हुआ है। अरे तू बीच में क्यों बोलने लगा? क्यों बोला? मैं अपने अकीदे की बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों ऐसा बोला? अरे 5 मिनट दिया, तुम्हारे अकीदे पे, तुम्हारे अकीदे के दलाल पे बात हो रही है। अरे तुम्हारे अकीदे को तो धज्जियां उड़ गई अल्हम्दुलिल्लाह। बोल भागना नहीं। अभी सुनो, अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ, ये कहाँ पर? किताब सुन्ना के अंदर इमाम अहमद इब्न हम्बल ने रिवायत नकल की है। सफा नंबर बोल, इबारत पढ़, ऐसा नहीं चलेगा, गलत बात है। अज़्ज़ा व जल को कैसे पहचाने? सफा नंबर किताब सुन्ना पहली बात है, इमाम अहमद बिन हम्बल में साबित ही नहीं है। अरे फिर बीच में आ गया। नहीं गलत बात, मैं बता दिया। तब आप बोल लेना, ठीक है? जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलो। ऐसे ही 2 मिनट फिर बर्बाद कर दिए, बीच में ना बोले। बोलने की बीमारी है तो अपने टाइम पे बोले ना। अपने टाइम पे तो दलील ही नहीं दे पाए अपने मनगढ़ंत अकीदे की। मैं इबारत पढ़ के इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक फिर बीच में आ गए। फिर इमाम
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ہم اپنے رب کو کیسے پہچانے، تو وہ کیا فرماتے ہیں اپنے رب عز و جل کو کیسے پہچانے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے اور اپنے تمام مخلوق سے جدا ہے، اور ہم جہمیوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یا زمین میں ہے معاذ اللہ، یعنی کہ اگین پھر سلف نے ان کے عقیدے کو جہمیہ ثابت کیا، دیکھا آپ نے۔ اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ جہمیہ کا تھا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کتاب العلو کے اندر یہ بات کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، معاذ اللہ پھر جھوٹ بولے ہم پر، ہم نے تو کتاب کا حوالہ دیا بھائی، کتاب عقیدے سلف پر اعتراضات کے جوابات، پھر جو ہے آپ کو تفسیر کا حوالہ دیا، آپ کے من گھڑت عقیدے کی کوئی دلیل آپ نے پیش نہیں کی، ایک واضح آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ ثابت ہو رہا جس کا ترجمہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کسی ایک آیت کا بھی یہ ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے معاذ اللہ۔ یاد رکھ لو، من گھڑت عقیدے، باطل عقیدے کبھی قرآن و سنت، فہم صحابہ اور فہم سلف سے ثابت نہیں ہو سکتے، کیونکہ سلف نے ہم کو بتا دیا کہ استوا کا معنی انہوں نے کیا کیا، استوا کا معنی اوپر کی طرف انہوں نے کیا، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، کانا عرشہ علی الماء کی تفسیر میں ارتفع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے اوپر بلند ہوا، کون ہوا؟ رحمت ہوئی، اللہ تعالیٰ خود عرش کے اوپر بلند ہوا۔ اب یہ پھر کیا کہہ رہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے اس کے اندر، یہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو میں۔ اس کے بعد میں اسحاق بن راہوے وغیرہ جو کہ قدیم اور جدید دور کے جو ہے مسلمانوں میں کے امام ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، صفت باری تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، وہ کوئی کیفیت ہم بیان نہیں کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، ایسی کوئی ہم نے تعویل اور کیفیت بیان کرنی نہیں ہے۔ کتاب للبیہقی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد میں امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مخلوق سے تشبیہ دینا کفر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تو ہر جگہ ثابت کرنا ہے، یعنی کہ ہر جگہ جتنے کنکر اتنے شنکر، ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھ لو باطل عقیدے۔ پھر اس کے بعد میں چلیے ایک بات اور ایک بتا دیتا ہوں، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، حدیث شان نزول کی وہ شرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر جو آتا ہے، اس کے وہ شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، جیسا کہ جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یہ حدیث معتزلہ اور جہمیہ کے خلاف ہے، اہل سنت کی دلیل ہے۔ جہمیہ اور معتزلہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں موجود ہے، اللہ اکبر، صرف عرش پر نہیں ہے۔ اس بارے میں جو بات اہل حق نے کی وہ دلیل یہ ہے، انہوں نے آیت پڑھ کے بتائی، الرحمن علی العرش استویٰ، التمہید نامی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد میں امام قتیبہ بن سعد رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ائمہ کرام کا اہل سنت کا ماخوذ یہ قول، اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا، انہوں نے آیت بھی کوٹ کی، الرحمن علی العرش استویٰ۔ کتاب اصحاب الحدیث للحاکم کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یعنی کہ میرا ٹائم کے مطابق میں نے ختم کر دی، آپ اپنے بتائیں ہے کہ چلے گئے؟ ہاں ارے یار کہاں یہی بات بول رہا ہے۔ دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ تم نہ کوئی عبارت پڑھ رہے ہو، خالی کتاب کا نام پڑھ کے بتا رہے یہ پھلا پھلا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب تم خالی کتاب کا بولو کہ پھلا کتاب میں ایسا ہے، اس کی عبارت پڑھو، عبارت پڑھ کر ہی تم سب کچھ ثابت کر پاؤ گے۔ دیکھو میں عبارت پڑھ رہا ہوں، الفرق بین الفرق، ٹھیک ہے، علامہ جرجانی کی یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں اجماع ہے، اجمع علی انہ لا یہوی مکان ولا یجری علیہ زمان ولا خلاف قول ومن جامع من الحشامیہ والکرامیہ انہ مماثل لفراسہ وقد قال امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ تعالی خلق الارض اظہارا للقدرتہ لا مکان لذاتہ وقال ایضا وقد کان ولا مکان هو الان علی ما کان، کہ یہ فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی مکان ہے نہ زمان ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و عظمت کے لیے عرش کو پیدا کیا اور اس کو اپنی ذات کے لیے مکان نہیں بنایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تھی اس وقت بھی تھی جب کوئی مکان نہیں تھا،
اور آج بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ پہلے تھا، یعنی اللہ تعالیٰ مکان کے بغیر ہی موجود ہے۔ تو جب عرش نہیں بنا تھا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس وقت جہاں تھا، عرش بننے کے بعد بھی وہی ہے، کوئی فرق نہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا امام بخاری لکھتے ہیں فتح الباری میں، وقال ابن بطال گرج البخاری فی حاج البابی الرد علی الجہمیہ مجسمہ فی تعلقا بحاج الجواہری وقد تقرر ان اللہ لیس بجسم فلا یحتاج الی مکان یستقر فیہ فقد کان ولا مکان کہ امام بطال کہتے ہیں، جو امام بخاری کے شارح ہیں، کہ امام بخاری کا عقیدہ نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے مکان کا محتاج یا اس میں ٹھہرنے کا محتاج، وہ نہ وہ کوئی مکان میں ٹھہرنے کا محتاج ہے نہ کسی زمان میں، یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے۔ تو اور امام بخاری کہتے ہیں لیس ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ لیس قولنا ان اللہ علی العرش انه مماث له او متمکن فيه او متحج في جهة من جهات بل هو خبر جاءت به التوقيف فقلنا له به ونفينا عنه التخفيف اذا ليس كمثله شيء وبالله التوفيق۔ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا وہ اس سے ملا ہوا ہے یا اس پر متمکن ہے یا متحج ہے یہ جہت کے اعتبار سے، بلکہ وہ جیسا خبر آیا ویسا ہی مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دلیل ہے سلف کی۔ 4 منٹ ہو گئے آپ کے، چل بھائی چل تم بولو، ہو گیا؟ ہاں تم حوالہ دو، دیکھا آپ لوگوں نے سامعین کرام 4 منٹ میں نے ان کو برابر دے دیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا ان کے عقیدے کی طرف آئی؟ نہیں آئے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، کیا ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق وہ ہے جو باطل بھی سر چڑھ کر بولے۔ الحمدللہ ان کے عقیدہ، یہ خود اپنے عقیدے کو رد کرے، یہ خود الحمدللہ یہ خود اپنے عقیدے کو رد کرے۔ اسی لیے انہوں نے کیا دلیل دی؟ اللہ لامکہ ہے کی دلیل دی۔ اور عقیدہ کیا بیان کیا انہوں نے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ ایک آیت پیش نہیں کر پائے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اور ایک ایسی قرآن میں واضح آیت نہیں ہے جس کا یہ معنی یا یہ ترجمہ کیا ہو کسی مفسر نے کہ اللہ لامکہ ہے۔ جیسے ہی عقیدہ بنائیں گے اللہ ہر جگہ ہے، تو ان کا اللہ لامکہ ہے والا عقیدہ خود بخود باطل ہو جائے گا، اور جیسے ہی یہ کہیں گے کہ اللہ لامکہ ہے تو پھر ہر جگہ والا عقیدہ خود بخود باطل ہو جائے گا۔ یعنی کہ من گھڑت عقیدے، باطل عقیدے کبھی قرآن و سنت فہم صحابہ اور فہم سلف سے ثابت نہیں ہوتے۔ ایک قرآن کی آیت کا انہوں نے ترجمہ نہیں کیا جس سے ان کا عقیدہ ثابت ہو رہا۔ انہوں نے جتنے بھی ائمہ کے اقوال پیش کیے ہیں اس کے اندر یہ عقیدے میں تقلید کرتے ہیں شاید، اور اس کے اندر الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی معاذ اللہ اپنے طریقے سے۔ جہمیہ کیا کرتے تھے؟ جب آپ امام احمد بن حنبل کی کتاب پڑھیں گے، اور رد الجہمیہ میں کیا کہتے ہیں، ان سے سوال ہوتے رہتا، بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے جیسا ہاتھ ہے۔ ارے تم تشبیہ کیوں دے رہے؟ اگر ہم کسی مکان میں تو اللہ تعالیٰ کا بھی مکان ہے، تو وہ خود اپنی طرح اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ان کے رد میں یہ ساری باتیں کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اس سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے بھائی؟ کسی کو اختلاف؟ اور جتنے سلف نے بات کہی سب نے یہی بیان کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانیں گے بلا کیفیت اور بلا تعویل، کوئی تعویل بیان نہیں کی اہل سنت والجماعت نے۔ پھر اس کے بعد میں ان کا ایک بھی عقیدہ ایک قرآن کی آیت تھی، کیونکہ من گھڑت عقیدے کیسے ثابت ہوں گے؟ امام ابن ابی شیبہ یہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ فرمان باری تعالیٰ کا یہ کیا کہہ رہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کیا ہوا؟ عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور زمین اور آسمان کی ہر چیز کو دیکھتا ہے، وہ عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس کی آواز کو بعینی سنتا ہے۔ کوئی ایسے پردے نہیں جو سب سے نچلی زمین میں موجود چیز کو دیکھنے سے اس کی رکاوٹ بنے۔ یعنی کہ تفصیلاً انہوں نے بتا دیا یہاں پر، یہ کتاب میں جو ہے سو انہوں نے یہ بات لکھ دی ہے ماشاءاللہ سے۔ پھر اس کے بعد میں امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ پھر یہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ تمام جو آیات ہے نا یہ معتزلہ کے رد میں ہے۔ بول رہے وہ کیا عقیدہ بنا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ انہوں نے یہی آیتوں سے دلیل لینے کی کوشش کی۔ یہ آیتیں سے من گھڑت عقیدے کبھی ثابت نہیں ہوتا، امام احمد نے بتا دیا الحمدللہ۔ اس کے بعد امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ
یہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ اور جہمیہ اور حروریہ حضرات نے کہا کہ فرمان باری تعالیٰ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا کا معنی کیا نکالا انہوں نے؟ کہ اللہ تعالیٰ غالب ہوا کرتے، مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کرتے خالی عرش پر، مالک بنا اور اس نے تسلط حاصل کیا۔ نیز اس کے خیال میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے انہوں نے بتا دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کر دیا، سیدھے سے قرآن کی آیت کا انہوں نے انکار کر دیا، جیسے کہ اہل حق اس کے قائل ہے اور اہل باطل لوگ استوا کی تعویل میں قدرت کی طرف گئے ہیں بلکہ بول رہے ہیں۔ اصول الدانیہ حنامی کتاب میں امام، اس کے بعد میں امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بلند و اعلیٰ خالق ہر چیز پر قادر کے عرش پر مستوی ہونے کا بیان، بلکہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر اور ہر چیز کے اوپر، جیسا کہ اس نے خود خبر دی الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ اس کے بعد میں انہوں نے آیت بھی کوٹ کی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بلکہ باقاعدہ انہوں نے آیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو عرش پر ہونا ثابت کیا، لیکن ایک قرآن کی آیت میں ایسی واضح نہیں ہے جس کا یہ ترجمہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا معنی نہیں کر رہا قرآن کی آیت کا کہ اللہ لامکاں ہے؟ اور کیا کہتے ہیں آگے؟ وہ خلق السماوات والارض فی ستۃ وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 یوم میں پیدا کیا، تب اس کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ تعالیٰ اس خبر کو مطلق و ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خالق اپنے عرش پر مستوی ہے۔ کتنا صاف الفاظوں میں ہمارا عقیدہ ماشاءاللہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اور آگے جا کے کیا کہتے ہیں؟ اور جو ہمیں یہ نہیں کہیں گے جیسا کہ معطلہ اور جہمیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مسلط اور غالب ہوا بول کے بتا رہے ہیں، مستوی نہیں ہوا، وہ غالب ہوا صرف بول کے بتا رہے ہیں، یعنی کہ جہمیہ کی طرح عقیدہ رکھنے والے کے بارے میں سلف نے وضاحت اور تفصیلاً بیان کر دیا الحمدللہ۔ چلیے ہم اپنے مطابق 4 منٹ کے قریب بول دیے، ہو گیا؟ ہاں الحمدللہ۔ اچھا بھائی، آپ نے سنا ان کی ساری چیزیں، ان کے کوئی دلیل پہ نہیں بات کیے ہیں، نہ کوئی عبارت ابھی تک پڑھے، نہ کتاب کا نام، نہ صفحہ نمبر، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ خالی بس وہی کرتے ہیں فلاں 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 نہ اس کا کچھ عبارت پڑھنا، نہ حوالہ دینا، نہ کتاب کا نام بتانا، نہ صفحہ نمبر، نہ عبارت، کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے خود دیکھا ہوگا، اور اپنے موضوع سے بھی بھٹک گئے، یہ اپنی دلیل نہیں دے رہے۔ یہ قرآن کی آیت جو پڑھ رہے ہیں، تو قرآن میں تو یہ بھی ہے ثم استوى الى السماء کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر مستوی ہوا، لیکن یہ اس کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اپنا منفرد عقیدہ ہے۔ اور استوا کا معنی سارے ائمہ نے، امام جہبی ہو یا ان کے ائمہ ہو یا سارے ائمہ، کم سے کم 14 معنی، 14 سے لے کے 18 معنی کیے ہیں استوا۔ اسی میں ایک استولا یعنی غلبہ کے بھی معنی کیے ہیں، جس پر یہ اعتراض کر رہا تھا۔ تو اس کا خود اس کو نہیں معلوم کہ استوا کا کیا معنی ہے، 14 معنی ہے۔ تو استوا کا یہ کوئی اپنا معنی دکھا دے کہ استوا کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اور عرش پر اپنی ذات کے اعتبار سے ہے۔ کسی بھی اہل لغت ہو یا اہل تفسیر ہو، کسی سے بھی معنی بتا دے۔ اور یہ جو بھی نام لے رہا ہے، یہ سب غلط سلط ہی دے رہا ہے، نہ اس کے پاس کوئی حوالے ہیں نہ کچھ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی خود فرماتے ہیں کہ وہ جمہور اہل سنہ منہم السلف و اہل الحدیث علی الایمان بها والتفویض معناها المراد منها الی اللہ تعالی ولا تفسرها ما تنجی له عن حقیقتها، کہ اہل سنت جس میں سلف اور محدثین شامل ہیں، ان کا مذہب یہ ہے کہ ایمان رکھنا ساتھ ان کے کہ معنی مراد اللہ کے سپرد کر دینا، کہ ہم ان کی تفسیر نہیں کرتے۔ اور یہ اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ استوا کا معنی کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ تو سلف کے خلاف یہ خود جا رہا ہے، اور میں اپنے دلیل کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں، میں اس نے جو دلیل دے رہا ہے ہم اس پر ابھی بات کر رہے ہیں۔ اور اس کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے آسمان پر ہے، تو یہ بھی اس کا سلف کے خلاف ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ امام جہبی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں قلت ثواب القف عن اطلاق ذلك اذ لم یاتی فیہ نص ولا فرجنا ان المعنی صحیح فلیس لنا ان نتفقه بشیء لم یاجنا به اللہ خوفا من ان يدخل القلب شیء من بدعہ اللہم حافظنا علینا ایماننا۔ یہ سیر اعلام النبلہ میں خود فرماتے ہیں، امام جہبی کہتے ہیں میں
कहता हूँ कि सही बात यह है कि जाति का लफ्ज इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये नस में वारिद नहीं हुआ। ठीक है, अगर इसका माने बेजाति का माने दुरुस्त हो, तब भी हम भी 4 ऐसा मिनट हो लफ्ज गए। मुंह से ना निकालें जिसकी इजाजत अल्लाह ने नहीं दी है, ताकि दिल में बिदअत दाखिल ना हो। हाय अल्लाह हमारी इस चीज से हिफाजत फरमाए। और दूसरी जगह इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह खुद कहते टाइम हैं, खत्म भाई आपका। वक़द हुमिला कौमुन मिनल मुताखिरीन हाजी सिफती अला मक़सदिल हिस्सी फ़क़ालू इस्तवा अलल अर्शी बिजातिही वहाजिही लिजियातुन लम यनकलूहा इन्नमा फ़हमुहा मिन एहसासिहिम हुवा अन्नल मुस्तवी अलल शै इन्नमा यस्तवी अलैहि जातिही क़ाल इब्नुल हामी इस्तवा मुमासहु वस्फ़हु लिजातिही वल मुराद बिहिल क़ऊद। मुताखिरीन में से कुछ लोगों ने इस सिफत इस्तवा को महसूसाना तरीके पर लिया है कि अल्लाह ताला ने अपनी जात के साथ अर्श पर इस्तवा किया। अपनी जात का ऐसा इजाफा है जिनकी उनके पास कोई कुरान और हदीस से दलील नहीं है, बल्कि उन्होंने मखलूक पर क्यास करके समझा है। यानी जो कहे जात के इतबार से वो 3 मखलूक पर मिनट क्यास 4 किया मिनट है। हो गए। और ये मुनाजिर साहब जरा टाइम देख लेना। तस्बीया इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, इस इबारत मैंने उससे पढ़ी है। ठीक है भाई, चलो अभी और भी इबारतें बाकी है तुम्हारी बहुत चलो और सुभान पढ़ो अल्लाह। कि अभी ये तुम जो पढ़ोगे। कोई नहीं, आपका टाइम जितना था उसमें खत्म करे तो बेहतर है, मेरे पास भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखा एक भी सामान्य आपने, इबारत नहीं, दलील फिर नहीं, किताब फिर असल ये किताब से अगेन नहीं। फिर क्या बोलो करें, मैं असल किताब से फिर सब बीच भेज में दूं तुम्हारे। फिर बीच में आ गए। बीच आप में नहीं, 4 अभी मिनट मैं बोले, हो गया ना भाई टाइम, फिर बीच में क्यों? अरे अभी तुम आपका टाइम बोले खत्म हो कहाँ गया, हो? फिर बीच में क्यों? पागल कहीं फिर आप खामोश हो जाए ना, टाइम हो गया चल बोला, अपनी फिर दलील बीच दे, में आ अपने रहे हैं, ऐसे ही अकीदे फिर पे 1 मिनट दलील खराब कर दिए। देखो अगले फिर 1 दलील, मिनट अपने ऐसे ही खराब अकीदे कर पे दिए। दलील दे, जब तुम्हारा टाइम आएगा जब आप अपने बोलना। अकीदे पे दलील बता बे। फिर से इन्होंने क्या क्या एतराज किया? इमाम ज़हाबी पर एतराज किया। सुभान बोल अल्लाह। लो, कहते हैं लेकिन इमाम ज़हाबी पे मुकल्लिद एतराज किया, कम झूठा पढ़े आदमी लिखे कहीं होते का। हैं ना, ज्यादा झूठा पढ़े कहीं लिखे तो नहीं होते मुकल्लिद, इसीलिए तो आइम्मा ने कहा कि जाहिल होते हैं ये जो मैंने किताब का हवाला दिया, अकीदे सलफ पर एतराजात के जवाबात बोल के किताब है, किसकी किताब है गामा? अरे फिर बीच में ना बोलो यार, क्यों इतना बड़बड़ गुस्सा क्यों आ रहा? अरे मैं बोलो किसकी इतना किताब गुस्सा? है? फिर बीच में अगेन और 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा मैं बताएगा। अगर बीच में बोलोगे तो। मैं बताऊंगा जब मेरी मुकम्मल बात होगी। अगर तुम नहीं, ऐसे ही बीच में किताब का फड्डी नाम मारोगे तो मोतबर कैसे? किताब तुमको होना डर लग चाहिए। रहा है? तुमको डर लग रहा है? मुझे अपनी मेरे बात टाइम पे, बता मैं तुम्हारे टाइम पे बोला, अपनी बात मैं तुम्हारे बता। टाइम पे बोला नहीं बोला? तुमको डर क्यों लग रहा है? देखा इसके अंदर उन्होंने माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया। उसका इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह का उनका सही कौल उसके अंदर नकल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो जाके एक मरतबा किताब पढ़ ले। क्या किताब है? अकीदे सलफ पर एतराज़ात के जवाब बोल के। फिर उसके बाद में देखिए, ये अपनी अकीदे की तरफ आए ही नहीं, कैसे आएंगे? मनगढ़ंत अकीदे, बातिल अकीदे, जहमिया और मुअतज़िला के अकीदे कभी कुरान और सुन्नत फहमे साहबा फहमे सलफ से साबित नहीं होते। अहले सुन्नत वल जमात का ये इजमाई और इत्तेफाकी अकीदा है कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, वो अपनी मखलूक से जुदा है। मगर जहमिया और मुअत्तला का कहना है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, जबकि कुरान और सही हदीस और इजमाए उम्मत और फितरत इसके बातिल अकीदे का रद्द करता है। अहले सुन्नत में से एक भी इंसान ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला हर जगह है, और जितने इन्होंने इबारतें पेश की, किसी एक इबारत में ये नहीं लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। या तो ये अल्लाह को लामकान साबित कर रहे थे अपने अकीदे के अगेंस्ट जाके, अपने ही अकीदे को रद्द कर दिए। फिर उसके बाद हाफिज इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह ये क्या कहते हैं? ये तो खुला बताते हैं। वल मुअतज़िला के बारे में क्या कहते हैं? फिरक़े मुअतज़िला अल्लाह सुब्हानहू तआला को हर जगह मानते थे, ये अकीदा बातिल है बोल के बताए। फिर उसके बाद मुफस्सिर कुरान तफसीर कुर्तुबी में इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं? कहते हैं मुअतज़िला क्या कहते हैं? अल्लाह ताला की जो वहुवा माकुम जो वाली आयत है, देखो वहां पर वो कहते हैं, वहाँ तफसीर करते हुए अल्लाह ताला उनके साथ है का मतलब है कि वो इल्म के एतबार से, रूयत के एतबार से, समा के एतबार से उनके साथ है। अहले सुन्नत वल जमात का यही मौक़िफ़ है, जबकि जहमिया और खुदूरिया और मुअतज़िला कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। तफसीर कुर्तुबी उठा के पढ़ ले। फिर उसके बाद हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा इस बारे में। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? इन्नल्लाह फी कुल्ली मकान व बिज़ाती, यानी कि ये अल्लाह ताला को हर जात में मानते थे ना। जहम बिन सफ़वान नामी जो शख्स था, वो जिसकी तरफ ये फिरका मंसूब है, ये जहमिया फिरका जो मंसूब है, इन लोगों का क्या कहना था? बोल रहे वो, इनका कहना था कि अल्लाह ताला बिज़ाती अर्श के ऊपर नहीं बल्कि हर जगह मौजूद है। जात के एतबार से हर जगह मानते थे। सेम एज इट इज इनका अकीदा जाके जहमिया से मिल खा रहा। अल्लाह ताला
की इन बातों से पाक है। अलबिदाया व निहाया के अंदर ये बात इनकी लिखी हुई है। उसके बाद में आगे क्या कहते हैं अल्लाह ताला के बारे में, वहु अल्लाह की समावात, आपने जो आयत पढ़ी ना इसके बारे में देखिए सलफ क्या कहते हैं, और फिर अर्ज़ यालमु सिर्रकुम व जहरकुम व यालमु मा तक्सिबून, अल्लाह ताला ही है जो आसमानों और जमीन में तुम्हारे पोशीदा और जाहिर बातों को, वो अमाल को जानता है, इन्हीं के एतबार से जानता है, वहाँ पर जात का मुराद नहीं है। उसके बाद में फरमाते हैं कि तफसीर हाफिज इब्न कसीर आगे क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि इस आयत में मुफस्सिरीन के कई अक़वाल नकल किए, लेकिन इस बात पर सब मुत्तफिक है कि जहमिया की ये बात गलत है कि अल्लाह ताला हर जगह है। सब मुत्तफिक है इस बात पर कि जहमिया का अक़ीदा क्या है, अल्लाह हर जगह है। ये मुक़ल्लिदीन का अक़ीदा क्या है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। लेकिन एक वाज़ेह आयत पेश नहीं कर सके अपने मनगढ़ंत अक़ीदे को साबित, कैसे साबित होंगे। फिर उसके बाद आगे क्या कहते हैं, अल्लाह ताला उनकी इस तरह की बातों से पाक और मुनज़्ज़ह है। फिर उसके बाद इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको पसंद किया, और इसको शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब के अंदर इसको नकल किया है। क्या आप बताएं, जो शख्स ये भी कहता है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात के एतबार से हर जगह है, वो कुरान और सुन्नत और उम्मत मुस्लिमा के उलमा और अइम्मा दीन के इजमा के मुखालिफ है, साथ ही साथ वो इस फितरत के भी मुखालिफ है जो ये अल्लाह ताला ने उस बंदों के साथ उसको पैदा किया है, बल्कि बता रहे मजमा अल फतावा किताब के अंदर इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह। फिर उसके बाद में उलू के बारे में अल्लाह ताला हर जगह होने का जो जहमिया ने अकीदा बनाया, जो नजरिया पेश किया, अहले सुन्नत ने और मुतकद्दिमीन ने क्या बताया कि ये अकीदा जहमिया का है। ये जहम बिन सफून नामी जो शख्स था, बहरहाल उसकी तरफ ये मंसूब का मजमुआ अल फतावा के अंदर। उसके बाद में शेखुल इस्लाम इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाह अलैह देखो क्या कहते हैं, यह कहते हैं कि मैं और एक बिदअती यानी इब्राहिम बिन अबी सालेह, इसके अमीर अब्दुल्ला बिन ताहिर की मजलिस में मतलब बैठे हुए थे, आपस में पूछ रहे थे। इब्राहिम ने कहने लगे मैं उस रब को नहीं जानता जो 7 आसमानों से पहले आसमान की तरफ नुज़ूल करता है। मैंने कहा मैं इस रब पर ईमान लाता हूँ जो वही करता है और जो चाहता है। बल्कि इस किताब अस्मा और सिफात बहकी के अंदर इनका ये इबारत नकल की गई है। उसके बाद में जो सही मुस्लिम के अंदर जो हदीस है कि अल्लाह ताला जो है हर रात पहले आसमान की तरफ आता है, तो इसकी तफसीर कर रहे कौन, शेखुल इस्लाम इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जो नुज़ूल बारी ताला का इस्बात कर रहे हैं, और यही अकीदा कि अल्लाह ताला हर जगह है, ये बातिल अकीदा है बल्कि बता रहे हैं। उसके बाद अबू उबैद बिन उस्मान अल मक्की रहमतुल्लाह अलैह ये क्या कहते हैं, क्या ये कहते हैं कि अल्लाह ताला अपनी अजमत और जलालत के साथ अपने अर्श पर मुस्तवी है, हर जगह नहीं है। किताब अल अर्श इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की। फिर उसके बाद में इमाम इब्न आसिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं किताब सुन्ना के अंदर, क्या कहते हैं, उन दलाइल का बयान कि अल्लाह ताला अपने आसमानों के ऊपर और अपनी जमीन में नहीं है। इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह देखो क्या कहते हैं कि जो शख्स इस बात का इनकार करे कि अल्लाह ताला अपने अर्श पर और अपने 7 आसमानों के ऊपर मुस्तवी है, वो अपने रब से कुफ्र करने वाला है। ये कहाँ लिखी हुई है बात, मारिफत उलूमुल हदीस बिन हाकिम के अंदर ये बात लिखी हुई है। चलिए मैं काफी टाइम ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप अपनी बात बता दें। मैं अपने वादे के खिलाफ देखिए बात मुकम्मल कर रहा हूँ, आप भी मुकम्मल कर दे, रोक दे वहां पर। देखो कारीन किराम, देखो आपने खुद देखा कि हमारे अकीदे पे अभी बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है इनके अकीदे पे कि इनका जो अकीदा था कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है अपनी जात के एतबार से, ये कुरान से साबित है, ये हदीस से, इजमा से और सलफ से, मगर ये अपने अकीदे पर एक भी दलील नहीं दे पाया, एक भी दलील, कुछ भी दलील नहीं दे पाया। खाली ये बोलते रह रहा है कि ये अकीदा इसका कुरान और हदीस से साबित है, लेकिन ये अकीदा अपने साबित करने के बजाय ये हमारे अकीदे पे आ रहा है बार बार। जबकि मैंने इसको कह चुका हूँ कि ये दूसरी आइडियो में मैं अपने अकीदे पे दलील दूंगा, लेकिन इसके पास कोई दलील नहीं, इसलिए मेरे अकीदे पे आ रहा है, बार बार बोलता है कि ये अकीदे पे दलील नहीं दे पाए। इसका जो मानना है कि अल्लाह ताला जात के एतबार से आसमान के ऊपर है और ये कुरान और हदीस इजमा सलफ से साबित है, मगर ये एक भी दलील नहीं दे पाया। बल्कि उसके रद्द में मैंने जात के एतबार से जो कहा है, उसके रद्द में मैंने अल्लामा जहबी की किताब से साबित किया हूँ, और अल्लामा जहबी की एक और किताब सियर अलामुल नबरा की एक और इबारत मैं जिक्र कर रहा हूँ, वक़द ज़करना अन्ना लफ़्ज़तन बिजातिही लाहाजत इलैहि हो या तस्तगफुर नफूसा व तर्कुहा औला वल्लाहु आलम। कहते हैं इमाम जहबी कि हमने ऊपर बयान कर दिया है कि लफ्ज़ बिजातिही की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ये दिलों को फसाद अकीदा की तरफ ले जाने वाला है। लफ्ज़ जो जात है, अल्लामा जहबी कह रहे हैं, ये दिलों को फसाद अकीदे की तरफ ले जाने वाला है। यहाँ तक कि इसके
غیر مقلد کے علامہ البانی بھی کہتے ہیں کل تو منہاجا مختصر العلو علی الغفار میں کہتے ہیں حاشیے میں کل تو منہاج الارض یاتین ان ہاتین لفظتین بجات ہی وبائن لم تکونا معروفین فی عہد الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہ یہ جو لفظ ہے بجات ہی یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں معروف ہی نہیں ہے، یہ ان کے دور میں یہ ملتا ہی نہیں ہے، ان کا خود ایجاد کردہ ہے۔ دوسری کتاب ہے ایجاء الدلیل، ٹھیک ہے، یہ محمد ابراہیم بن سعد اللہ ابن جماعہ کی ہے، یہ 728 المتوفہ کے ہیں۔ یہ خود کہتے ہیں فقط ابتدا بحاجہ زیادت التی لم تثبت فی السنہ ولا ان احد من عن الائمۃ المقتدى بهم وجاد بعض الحنابلة متأخرین فقال الاستواء مماثلۃ لذاته وانه على عرشه ما ملاه وانه لا بد لذاته من نہایہ یعلمها، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود کہہ رہے ہیں یہ کہ یہ ثابت پختہ ہے، تو پھر جس نے استوا کو اس معنی میں لیا جو محدثات اور مخلوقات کی صفات میں سے ہے، اور اس نے کہا کہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے، مستقر ہوا، یہ اس نے کہا وہ حقیقت مستقر ہوا، تو اس نے اس زیادت کے ساتھ بدعت والا راستہ اختیار کیا، کیونکہ یہ زیادت تو نہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور ائمہ مقتدیٰ نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ تو بجاتی کا لفظ یہ بدعت ہے، امام جعفری کے مطابق یہ دلوں کو عقیدوں کو فساد کرنے والا ہے۔ آپ کا ہو گیا 4 منٹ۔ فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وہ فیہ رد علی من زعم انہ علی العرش بذاتہ، ان لوگوں پر رد ہے جو جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اپنی ذات کے اعتبار سے ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی اس کا رد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے ائمہ بھی اس کا رد کر رہے ہیں۔ امام ابن جوزی بھی کہہ رہے ہیں۔ ٹائم ہو گیا بھائی آپ کا، میرا ٹائم تو دیکھ لو نا۔ چلو کوئی بات، ٹائم دیکھ کے گفتگو کرو تاکہ بہتر لگے۔ اچھا ہے تو بتا رہا ہے نا بھائی۔ چلیے یہ آخری ٹرن ہے کیونکہ 1 گھنٹے کے اوپر ہماری بات بہت ہے، بہت ہے عبارت ہے ابھی۔ نہیں وہ آپ اپنی طرف رکھ لو کیونکہ 1 گھنٹے سے زیادہ گفتگو کرنا بیکار ہے۔ یہ آخری ٹرن ہے انشاءاللہ، کیونکہ آپ کو میں 4 منٹ دیا، میں اپنی 3 منٹ میں بات ختم کر دوں گا۔ مجھے دلیل دینا، وہ آپ جا کے اپنی ویڈیو بنا لو، ایک ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے یا گروپ میں ڈال کے ڈال لو، ٹھیک ہے؟ یہ بنے گی یوٹیوب پہ ہی جائے گا، یہ من گھڑت، ہاں بالکل اس کو بنا لو آپ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں نے پھر سے یعنی کہ ان کا یہ ماننا ہے، کہیں نہ کہیں انہوں نے ثابت کیا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اور یہ بذاتی ہم نے جو ہے سو سلف سے ہی ثابت کیا الحمدللہ، یہ اپنے طرف سے نہیں کیا، اور انہوں نے جو عقیدہ گھڑا اس کی ایک آیت پیش نہیں کی۔ اور دیکھتے جائیے کہ ان کا عقیدے کو سلف نے کیا کہا، یہ جہمیہ کا عقیدہ، جہمیہ کی عقیدے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اسی لیے چلیے ابھی پھر سے سن لیجئے، میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو سنیے کتنے لوگوں نے کہا کہ یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے۔ ہم نے سلف کی کتابیں پڑھی، اس کے بعد امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں شروع میں ہی کہہ دیا پھر آگے بیچ میں ہمارے عقیدے پہ بات، پھر بیچ میں آ گئے دلیل کی بات نہیں ارے ہو بھی نہیں سکتی، تم نے جو ہو بھی نہیں سکتی، ہو بھی نہیں سکتی، کیسے ہوگی؟ پھر بیچ میں آ رہے آپ، عرش کے اوپر، پھر بیچ میں آ رہے آپ، ارے بیچ میں نہ بولے، یہ غلط ہے، یہ اصول کے خلاف ہے، دلیل بعد میں، یہ اصول کے خلاف ہے، غلط ہے، یہ اصول کے خلاف بیان کر دیا تھا نا، میری یہ اصول کے خلاف ہے کہ ہمارے اصول عقیدے کے پہ خلاف بات ہے، نہیں ہوگی، ہمارے کی آپ اچھا یہ من گھڑت عقیدے پہ بات ہو بھی نہیں سکتی نا، کیسے نہیں ہوگی، دوسرے اتنی دیر میں، ارے بھائی میں بار بار تمہارے عقیدے کو من گھڑت ثابت کر رہا ہوں، بار بار سن لو۔ اب امام اس کے بعد میں چلو آپ مفسر امام ابن جریر، پھر 2 منٹ برباد کریں، دیکھا سا میں جب بھی بولنے لگ رہا ہوں یہ 2 منٹ برباد کر رہے ہیں، جب بھی بولنے لگ رہا ہوں 1 منٹ برباد کر رہے ہیں، 1 منٹ بیچ میں آ رہے، میں کچھ بول رہا ہوں، میں کچھ نہیں بولا نا میں ان کے بارے میں، یہ بیچ میں آتے جا رہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے یہی کافی ہے کہ اسے یہ علم ہو کہ اللہ رب العزت، اللہ رب العالمین جو عرش پر مستوی ہے، جو شخص اس سے تجاوز کرے گا وہ یقیناً تباہ و برباد ہو گیا، جیسے کہ تباہ و برباد ہو، پھر بیچ میں آگے دیکھا
देखा आप लोगों ने, ये अपने अकीदे को कभी साबित अपने कर भी नहीं अकीदे पे पाएंगे। ये बात नहीं करेंगे। मनगढ़ंत अकीदे, बातिल अकीदे कभी कुरान और तो सुन्नत फहमे साहबा फहमे सलफ से साबित नहीं होते। तुम्हारे फिर बीच अकाबिर में का आ गए, अकीदा मनगढ़ंत है। बीच में अभी मैं फोन काट दूंगा, देख लेना। इसके बाद इमाम अबू शेख डरा इब्न हुआ हज्जान लगता है बेचारा। असबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल उज़्मा में क्या फरमाते हैं, एक बाब बाकायदा उन्होंने कायम किया। क्या कायम किया? अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला के कुर्सी और उसकी कुर्सी, उन दोनों चीजों की अजमत का बयान बोल के उन्होंने बाब बांधा। उसके बाद इमाम तबरानी कहते हैं अपनी किताब सुन्ना में, क्या कहते हैं कि वो अल्लाह ताला के अपने अर्श पर मुस्तवी होने का बयान बाकायदा उन्होंने बाब बांध कर साबित किया इस बात को कि अल्लाह ताला अर्श पर है। उसके बाद इमाम अबू जकरिया याहिया बिन अम्मार सजस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ये क्या कहते हैं, जरा कान खोल के सुनिए सामीन कराम, ये क्या कहते हैं, वहुआ माकुन ऐना मा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, वो बिजातिया अला अर्श। क्या कहते हैं, हम जहमियों की तरह ये नहीं कहते हैं कि अल्लाह ताला तमाम जगहों में है। कौन कहते हैं ये? हर जगह अकीदा किसका है? जहमियों का अकीदा। कौन कहते हैं? अबू जकरिया याहिया और अम्मार बिन सजस्तानी रहमतुल्लाह अलैह। मुक़ल्लिद का अकीदा क्या है? अल्लाह हर जगह। किससे मेल खा रहा? जहमिया से मेल खा रहा। क्या बोलते हैं? वो तमाम जगहों में दुखुल किए हुए और हर चीज के साथ मिला हुआ है और हमें मालूम नहीं कि वो अल्लाह ताला कहाँ पर है। बोलते हैं ना अल्लाह ला मकान है, बल्कि उसका भी रद्द हो रहा। देखिए, बल्कि हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला अपनी जात के एतबार से अर्श पर है और उसका इल्म हर चीज को मुहीत है। उसका इल्म, उसकी समा, उसकी बसीर और उसकी कुदरत हर चीज को पाती है। इस फरमाने बारी ताला का यही माना है, वह हुआ माकुम ऐना माकुंतुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। और जहां भी तुम होते हो वो तुम्हारे साथ होता है और अल्लाह ताला तुम्हारे अमलों को देखने वाला है। अल्लाह ताला अपनी जात के एतबार से अर्श पर है, जैसा कि खुद अल्लाह ने फरमाया है। बल्कि बता किताब अल अर्श इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह और मजमू अल फतावा के अंदर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको नकल किया। उसके बाद में क्या आगे बात बताई फिर और सलफ ने, अल्लामा उमर बिन अहमद इब्न ज़ियाद असबहानी रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने भी क्या बताया, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने अर्श पर है। इस बारे में हम कोई कैफियत बयान नहीं करते, ना कोई तशबीह देते हैं और ना कोई तावील करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श पर क्या कैफियत में है, कोई अकल में वो बात हमारे आने वाली नहीं है। मगर इनका जो अकीदा है कि अपने अकीदे पे बात नहीं कर रहे, कैसे करेंगे भाई? एक वाज़ेह आयत नहीं है जिसका ये तर्जुमा हो कि अल्लाह ताला हर जगह है। अब ये अल्लाह ताला हर जगह है बल्कि इन्होंने अकीदा बयान किया ना, किया कि नहीं किया? हाँ, बयान किया। अब ये क्या साबित कर रहे थे कि अल्लाह ताला जगहों से पाक है। अरे खुद का अकीदा कम से कम खुद पढ़ लेते, उनको खुद अमल करते और ये मनगढ़ंत अकीदे से खुद ही तौबा कर लेते। तुमने खुद जो है सो अपनी अकल से साबित किया अल्लाह हर जगह है, फिर दलील क्या दे रहे हो कि अल्लाह किसी जगहों में नहीं है बल्कि। और हम अपनी तरफ से अल्लाह को अर्श पर नहीं कह रहे, अल्लाह ने खुद बयान किया अल्लाह अर्श के ऊपर है। और ये 7 मकामात पर अल्लाह ने बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के कहने पर जब वहां पर जहत है, वो क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। वो अल्लाह ने कहा अर्रहमान अल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर है तो अर्रहमान अर्श इस्तवा। फिर उसके बाद में कंजुल ईमान ने और एक किताब है, देखिए ये तो और एक बहुत जरूरी बात है। अब इसके अंदर इनसे गलती हुई नहीं मालूम, ये वाकई में इमाम अबू हनीफा का कौल उसके अंदर इन्होंने नकल किया, वल्लाहु आलम। क्या बात लिखी हुई है बाज़ तर्जुमे में, तशरीह में, तफसीर में, कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हालांकि ये बात है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की, लेकिन हो सकता वो कुछ लिखने में गलती हो गई शायद। ये इमाम अबू हनीफा का नाम उन्होंने लेके कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अल इस्तिवा मालूमुन, इस्तिवा का माना मालूम है, उसकी कैफियत मजहूल है, उस पर ईमान लाना वाजिब है। बोले अब अल्लाह ताला अर्श पर ही साबित नहीं कर रही है कि अल्लाह अर्श पर ही नहीं है, तो ईमान कहाँ से लाएंगे? बोलो हर जगह है। एक आयत अपने अकीदे पर पेश कर दे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे के करीब हो चुकी है बात। अब मैं इनको सिर्फ 1 मिनट देता हूँ, ये अपने 1 मिनट में अल्लाह ताला का इनका जो अकीदा है उसको साबित कर दे, क्योंकि मुझे दूसरी जगह भी जाना है, मुझे कॉल्स बहुत आ रहे, मैं वक्त से पहले अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। चलिए। देखिए भाई, देखिए कारीन कराम, ये अपने अकीदे पे एक भी दलील नहीं दे रहा है। शुरू में मैंने कह दिया था कि जो मेरा अकीदा है वो दूसरी आइडियो में बात होगी, पहले तुम्हारे अकीदे पे और तुम्हारे दलील पे बात होगी, ठीक है? ये मैंने शुरू में कह दिया था। और ये इधर उधर भाग रहा है क्योंकि इसके पास एक भी अपने अकीदे की एक भी दलील नहीं दी, और जो इसका दावा था वो मैंने आइम्मा से खुद रद्द किया है और कुरान से भी रद्द किया है। अभी देखो बीच में बोल रहा है इस्तवा, कुरान में इस्तवा आसमान की तरफ भी अल्लाह ताला मुस्तवी हुआ, इस्तवा का अल्फाज है, लेकिन आसमान में ये नहीं मानता।
ठीक है। और इस्तवा के 14 माने हैं, 14 से लेके 18 माने हैं, तब ये आइमा ने खुद कहा है। दूसरा, एक इल्जामी तौर पर इसके सारे आइमा अहले हदीस जो है, हो गई बात, वो अपने अकीदे पे कुछ बोल रहा है तो बोलो यार, सब हो गया। फिर वही 1 मिनट का टाइम दिया उसने, अपने अकीदे के बारे में कुछ बोलते तो बोलो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ये अपने उलमा को अपने जहमिया, फिर वही बात, अरे यार अपने अकीदे को कुरान से साबित करो, टाइम दिया ना। अपने उलमा को जहमिया नहीं करेंगे। चलिए देखा आप लोगों ने, ये अपने अकीदे की तरफ आ रहे ही नहीं। मैंने इनको टाइम दिया 1 मिनट का, मैं 1 मिनट का टाइम दिया इनको कि ये अपने अकीदे को साबित करें। और कैसे साबित करेंगे भाई? मैं आपको 1 मिनट का टाइम दिया, क्योंकि हर बात हो गई, आपने अपनी तरफ से बातें बयान की, हमने अपनी तरफ से बातें बयान की, और इसका आवाम फैसला करेगी। इसका आवाम फैसला करेगी अल्हम्दुलिल्लाह के मनगढ़ंत अकीदे, बातिल अकीदे, जहमिया और मुअतज़िला के अकीदे की दलील कोई नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ये साबित नहीं हो सकते, कभी साबित। अच्छा, कुरान की आयत नहीं है, अकीदे में तकलीद हो रही मौजूद। अरे अल्लाह ताला की, देखा आप लोगों ने, अकीदे में तकलीद कर रहे हैं। ठीक है, इसका अरे कुरान की आयत पेश करो अपने अकीदे पर, कि अल्लाह अपने ताला अकीदे